جاندار اور غیر جاندار اجسام میں فرق۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے جاندار ہمارے اطراف و اکناف موجود ہیں، ہم خود ایک جاندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی جو بخشی ہے جانداروں کو، یہ زندگی بہت چیزوں کے لیے ہے۔ اس میں عبادات بھی آ گئے، خوشی غمی، طرح طرح کے لوازمات، یہ ساری چیزوں کا، سارے لوازمات کا مجموعہ جو ہے یہ زندگی ہے۔ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جاندار کو بنایا، جانداروں کے ساتھ ساتھ اس پورے کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر طرح طرح کے موسم رکھے، پھر اس کے اندر دھوپ، چھاؤں، بارش، مٹی، سارے چیزیں رکھی ہیں، جاندار بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، سب ہیں۔ جی آج سب جی میوٹ کر لیجیے، آپ کو میوٹ کر لیجیے، صرف ویڈیو آن رکھیے، یہ کیا تو لوگ آڈیو کو میوٹ کیجیے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بنایا، جاندار کے ساتھ اس پورے کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر طرح طرح کے لوازمات رکھے، طرح طرح کی چیزیں رکھیں، جس میں بہت ساری چیزوں کا استعمال جاندار کرتے ہیں، کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بنتی ہے۔ تو جب دیکھیں یہ سلائیڈ موو نہیں ہو رہی ہے شاید، یا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھرے زمین پر جو لائف کا سائیکل رکھا ہے، سائیکل آف لائف یا لائف سائیکل، اس میں ہر جاندار، جیسے بھی سب سے پہلے آپ کے ایک ساتھی نے ڈیفائن کیا کہ زندگی جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک کا سلسلہ ہے، تو ہر جاندار جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کی ایک مدت کے بعد اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو ایوری سول ول ٹیسٹ دا ڈیتھ، کیا ہے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ موت کیا ہے؟ اس پورے کاوشوں کا جو زندگی کے اندر موجود ہیں، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہے۔ اور پھر خاتمے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہی جاندار جس کے اندر بہت سارے لوازمات موجود تھے، یہ لوازمات پھر سے استعمال میں آئیں گے، پھر سے ایک نئی زندگی اس سے وجود میں آئے گی۔ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا زبردست مفہوم ہے یہاں پر، and Allah has created you and He will cause you to die, and you there are some who are sent back to senility، کیا ہے؟ واپس مٹی کو جا رہے ہیں، so that they know nothing after having known، اور truly Allah is knowing all the powerful۔ الحمدللہ اللہ سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے، یہ ساری جاندار، سارے شے کو باقاعدہ چلانے والا ہے اور زندگی بنائے رکھنے والا ہے۔ تو انہی عناوین کو ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے یہ الگ الگ سٹیجز ہیں لائف کے، پیدائش سے لے کر لڑکپن، لڑکپن سے ادھیڑ عمر جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر قبر تک کا راستہ۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ لائف سائیکل ہے، الگ الگ مرحلے ہو رہے ہیں زندگی کے۔ تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے، زندگی کو بنانے کے لیے کون کون سے چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ابھی۔ دیکھیے یہاں پر ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی، شاید آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ؟ جی نظر آ رہی ہے۔ ایک جانور مرا پڑا ہے، مرنے کے بعد اس جاندار کی شکل ایسی نہیں ہے۔ جاندار جو زندہ تھا، ایک جانور جو زندہ تھا، اس کی موت کے بعد اس کا جسم تحلیل ہوتا نظر آتا ہے، ڈیکے بولتے ہیں یا ڈیکمپوزیشن بولتے ہیں اس کو۔ یہ ایک ایسا بڑا میکینزم ہے، اگر یہ نہ ہو تو زندگی وہیں پر رک جائے گی۔ زندگی کے جو چلانے والے جو لوازمات ہیں، وہ لوازمات دوسرے جانداروں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ پورا ایک سائیکل ہے، بتائے گی آپ کے سامنے، ابھی اگلے ٹاپک میں آئے گی سامنے بات۔ جب بھی کوئی جاندار، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو یا کوئی پودا ہو، جب
وہ ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس جاندار کے اندر موجود لوازمات، منرلز، نیوٹرینٹس جو بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے نیوٹرینٹس، منرلز تحلیل ہو کر پھر سے واپس مٹی میں آتے ہیں۔ جب مٹی میں آتے ہیں یہ لوازمات یا منرلز، تو ان لوازمات کا استعمال کرنے کے لیے ایک اور جاندار ہے جس کا نام ہے پودے۔ پودے جو ہے مٹی سے، زمین سے ان سارے لوازمات کو اپنے اندر کھینچتے ہیں جڑ کی مدد سے، ان لوازمات کا استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ نشوونما پاتے ہیں، نشوونما پانے کے ساتھ ساتھ وہ طرح طرح کی غذائیت کو تیار کرتے ہیں اپنے اندر، اور یہی غذائیت جو ان لوازمات کا مجموعہ ہے یہ دوسرے جانداروں کی غذا بنتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو وغیرہ، ان سارے جانداروں کی غذا کا ذریعہ جو ہے پودے بنتے ہیں۔ تو لوازمات جو ایک جاندار کے اندر تھے وہ وہاں سے مٹی میں گئے، پھر مٹی سے ہوتے ہوئے پودوں گئے، پودوں سے پھر سے جانداروں کے جسموں میں گئے، پھر یہی لوازمات جاندار کے ختم ہونے کے بعد پھر سے لوٹ کر کہاں پہ آ رہے ہیں؟ مٹی میں آ رہے ہیں۔ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت اہم سلسلہ ہے جس کا رکنا زندگی کو ختم کرنا ہے۔ اس مرحلے کا ہونا ہر ایک قرے کے لیے ضروری ہے تاکہ پورا ایک نظام بنائے رکھے اور باقاعدہ اس نظام کے اندر ایک ربط قائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایکولیبریم یعنی ایک توازن باقی رہے۔ تو اس توازن بنائے رکھنے کے لیے ان لوازمات کا ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہونا، باقاعدہ سائیکل ہوتے رہنا ضروری ہے، تبھی جا کر زندگی بنتی ہے۔ پھر اب زندگی کو بنانے کے لیے کون کون سے لوازمات، کون کون سے جو ایکٹیویٹیز، چند عناصر ہیں جس کی بنا پر زندگی بنتی ہے۔ تب اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ زندگی کیا ہے اور غیر جاندار میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں گے اس جاندار، چاہے وہ جراثیم ہو، چاہے وہ پودے ہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر جاندار جس کے اندر جان موجود ہے، زندگی موجود ہے ایک مدت تک، پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ان زندگی کو بنانے کے لیے چند عناصروں کا ہونا ضروری ہے، چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ جاندار نہیں کہلاتا۔ تو ہمارا مدعا جو ہے یہاں پر ہم لوگ کھل کر بات کریں گے بہت ساری چیزوں پر۔ ایک جاندار کو جاندار بنانے کے لیے 5 اہم چیزوں کی ضرورت ہے۔ چند آپ لوگوں نے بتائے ہیں ابھی، میں اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے پھر آگے بڑھوں گا۔ ایک جاندار کو جاندار کہلانے کے لیے ان 5 خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ خصوصیات اس کے اندر نہ ہو تو وہ جاندار نہیں کہلاتا۔ کون سے خصوصیات؟ سب سے پہلا جو ہے میٹابولزم، سب سے پہلا جو ہے میٹابولزم۔ میٹابولزم ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے ذریعے جاندار کے اندر طرح طرح کے کیمیائی تصادم پائے جاتے ہیں۔ کیمیائی تصادم یعنی ریاکشنز پائے جاتے ہیں ایک جاندار کے اندر۔ اب کون کون سے ریاکشنز ہیں انشاءاللہ بات آئے گی ابھی۔ ہر جاندار کے اندر طرح طرح کے کیمیائی مادے ہیں جس کے اندر کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، آئرن ہے، میگنیز ہے، مینگنس ہے۔ یہ سارے لوازمات، سارے منرلز جب جڑتے ہیں تو طرح طرح کے سیلز تیار ہوتے ہیں، اور ان سیلوں کا مجموعہ، سیلز کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ جسم کے اعضاء کو بناتا ہے، آرگنز کو بناتا ہے۔ تو یہ اعضاء کو بنانے کے لیے ان سیلوں کا مجموعہ، خلیوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ اعضاء کو بناتے ہیں تو اعضاء کے اندر ربط ہے، جوڑ، طرح طرح کے اعضاء ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ دیکھیں
हम अपने आप को देख सकते हैं एक आसानी से, हमारे जिस्म के अंदर दिमाग है, हाथ, पैर, दिल, गुर्दे, फेफड़े, इस तरह के तरह तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो हिस्से मौजूद हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। काम करने की वजह से हम एक मुकम्मल जानदार को देखते हैं एक इंसान की शक्ल में, है नहीं बात? एक जानदार, ऐसे नहीं कि दिल अलग से काम कर रहा हो, ऐसे नहीं कि खून अलग से काम कर रहा हो, ऐसे नहीं कि गुर्दे अलग से काम कर रहे हों जिसमें दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं हो। हर एक जिस्म, हर एक जानदार, हर एक अज़ू से ताल्लुक है। तो ये जुड़कर काम करना भी एक बहुत बड़ी तरगीब देता है हम लोगों को। जुड़ेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे, बिखरेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा सबक मिलता है हम लोगों को अपना, हम इन जिंदगियों का जायजा लें जिसके अंदर जोड़ मौजूद है, जोड़, रब्त, जो बहुत ज़रूरी होता है एक माशरे के लिए भी, एक जानदार के लिए भी। तो जानदार के अंदर मौजूद तरह तरह के अज़ू, इन अज़ुओं के अंदर तरह तरह के टिश्यूज़, और इन रेशों के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर खुलियों का मजमूआ है। हर एक खुलिया, चाहे वो पौधे के अंदर पाया जाने वाला हो, चाहे वो इंसान के अंदर पाया जाने वाला खुलिया हो, सेल हो, इन सेल्स के अंदर तरह तरह के कीमियाई तसादुम यानी केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस का होना जिंदगी का बाइस है। जिंदगी को बनाने के लिए इन तसादुमों का, इन रिएक्शंस का होना जरूरी है, जिसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। समझता हूं कि सब लोग नाश्ता किए होंगे शाम सुबह में अभी नहीं, कुछ तो खा सुबह सुबह सब लोग नहीं किए जी। हम लोग क्यों खाते हैं? ग़िज़ा की इसको मादा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को एक बात कहें, ग़िज़ा क्यों जरूरी है? इंसान को जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्या काम करती है? जिंदा रखने के लिए ग़िज़ा। ग़िज़ा जो है हम लोगों को या जिस्म को तवानाई देने वाला एक जरिया है। जानदार को जिंदा रहने के लिए तरह तरह के लवाजिमात की ज़रूरत है, और लवाजिमात के ज़रिए से तवानाई पैदा होती है जिस्म के अंदर। जानदारों के जिस्म के अंदर तवानाई पैदा होती है, चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे सो रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो। काम करने के लिए हम लोगों को तवानाई की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। अगर तवानाई नहीं मिलेगी तो कोई काम नहीं होगा। तो इस तवानाई को बनाने के लिए तवानाई का जरिया जो है वो ग़िज़ा है। ग़िज़ा तवानाई को बनाने के लिए काम करती है। तो जो भी हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, देखिए एक मिसाल दो, एक चावल का दाना है। चावल का दाना एक ग़िज़ा का एक हिस्सा है। क्या चावल के दाने को हम अपने हथेली पर, हाथ के ऊपर रख दें तो हमारा जिस्म इसको कबूल कर लेगा? इसको अपने अंदर नहीं करेगा। क्यों? उसको जज्ब करने के लिए सिस्टम कुदरत ने, अल्लाह ने बनाया है, कुछ एतबार से जाएगा जब काम करेगा जी। तो ये जो शक्ल है ग़िज़ा की, चावल के दाने की शक्ल में या गेहूं के दाने की शक्ल में, इसको इस्तेमाल करने की खासियत हमारा जिस्म ऐसे ही नहीं रखता। तो क्या है, इसके अंदर मौजूद बहुत सारी ग़िज़ाइयत मौजूद है। एक चावल के दाने को लें तो इसके अंदर हजारों स्टार्च मौजूद है। मैं अभी आपको बोर्ड के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, बोर्ड इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर थोड़ा। मैं जानदार को बनाने के लिए उसके अंदर जो चंद सिफात मौजूद हैं, उनमें एक अहम सिफत जो है वो है मेटाबॉलिज्म। बोर्ड पे नजर आ रहा है आपके सामने। मेटाबॉलिज्म जो है तरह तरह के कीमियाई तसादुमों का नाम है, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं रिपीट करूंगा, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी तरह तरह के कीमियाई तसादुमों का मजमुआ, उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म।
तो इस मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह के अमल पाए जाते हैं, ये एक अनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। जी सर, पहला जो है अनाबॉलिज्म जो है एक तामीरी अमल है, तामीरी अमल। कैटाबॉलिज्म जो है ये एक तखरीबी अमल है। तामीरी अमल जिसके अंदर कोई चीज, नई चीज वजूद में आती है। इसके लिए चंद मिसालें मैं आपके सामने रखा हूं बोर्ड पर। एक बोर्ड, ये देखिए चावल का दाना है। इस चावल के दाने को बनाने के लिए हजारों स्टार्च जुड़कर एक चावल के दाने को बनाते हैं। स्टार्च जो है ये ग़िज़ाइयत वाला मादा है, ये जो है ग़िज़ाइयत वाला मादा है। तो चावल के अंदर बहुत सारे स्टार्च मौजूद हैं, हजारों स्टार्च मौजूद हैं, इनका जुड़कर चावल को बनता है। तो जब हम लोग कोई चावल का इस्तेमाल करते हैं तो ये चावल मुंह के अंदर टूटेगा छोटे छोटे हिस्सों में, फिर ये टूटकर फिर और छोटे छोटे जर्रों में बनेगा, जिसके अंदर मौजूद स्टार्च, जिसके अंदर हजारों या लाखों ग्लूकोज मौजूद हैं। ये ग्लूकोज का मजमुआ होता है स्टार्च। इस स्टार्च का मजमुआ होता है एक दाना। तो ये टूटना, तोड़ने वाला मामला, चावल से टूटकर ग्लूकोज की शक्ल तक पहुंचने वाला मामला है, जिसके अंदर छोटे छोटे हिस्से टूटते चले जाते हैं। तो इस टूटने वाले अमल को यानी तखरीबी अमल को कहेंगे कैटाबॉलिज्म, टूटने वाले अमल को। फिर आगे बढ़ते हुए एक मिसाल दिया हूं मैं आपके सामने। जब हम लोग कोई प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन की शक्ल तरह तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोश्त हो या अंडा हो या मछली हो या दूध हो या दाने हो, तरह तरह के मटर हो, ये सारे चीजों के अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रोटीन को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा की शक्ल में, तो प्रोटीन सबसे पहले टूटेगा छोटे छोटे हिस्सों में, जिसे बोलेंगे पेप्टोन्स। अब गोश्त के अंदर मौजूद प्रोटीन बहुत सारे पेप्टोन्स से जुड़ा हुआ एक मजमुआ है। तो ये प्रोटीन जब पेप्टोन्स की शक्ल में बनेगा, फिर पेप्टोन्स से आगे बढ़कर फिर तहलील होगा। तहलील होने के बाद ये छोटे जर्रों में बनेगा, जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। देखिए, अल्लाह ताला ने जानदारों को जो बनाया है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो इंसान हो, हर जानदारों के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब ये 20 तरह के अमीनो एसिड जो हैं हर जानदारों के अंदर पाया जाना जरूरी है, तभी जाकर कोई प्रोटीन बनता है। चाहे वो पौधा हो या इंसान हो, जसामत को बनाने के लिए, जिस्म को बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है, जिसके बगैर जसामत नहीं बनती। जैसे सबसे पहले आपके एक साथी ने बताया, जानदार बने हैं सेल से। हाँ, सेल बनने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन के बगैर सेल का वजूद नहीं। तो इस सेल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो हम लोगों को ग़िज़ा की शक्ल से मिल रहे हैं। जैसे मिसाल दी आपके सामने गोश्त। जब हम लोग गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त के अंदर मौजूद प्रोटीन अलग होगा। इस प्रोटीन को तहलील करने के लिए हमारे मुंह के अंदर, मैदे के अंदर बनने वाले तरह तरह की रुतूबतें काम करेंगी, जो इसको तोड़कर पेप्टोन्स की शक्ल में बनाएंगी छोटे जर्रों में। फिर ये और आगे चलकर फिर टूटेगा, टूटने के बाद बनेगा अमीनो एसिड्स की शक्ल में, जो 20 तरह के अमीनो एसिड्स हम लोगों को मिलते हैं ग़िज़ा के जरिए से। तो ये 20 अमीनो एसिड्स आगे चलकर जिस्म की जरूरत के मुताबिक जो जो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिस्म के अंदर, उस लिहाज से ये काम करेंगे। और इन्हीं अमीनो एसिड के मजमूए में से चंद अमीनो एसिड जुड़ेंगे, जुड़कर एक तरह के प्रोटीन को बनाएंगे, जिसका नाम है ग्लोबिन, जिसका बनना जरूरी है खून को बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन सुने होंगे। इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ग्लोबिन का जरूरी है, ग्लोबिन को बनाने के लिए प्रोटीन, ये अमीनो एसिड जुड़ना जरूरी है। फिर इन्हीं अमीनो एसिड के मजमूए में से चंद अमीनो एसिड जुड़ेंगे, जुड़कर गोश्त के रेशों को बनाएंगे। इन गोश्त के अंदर, चाहे वो हम लोग जो गोश्त ग़िज़ा की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे हमारे जिस्म का भी दें, हमारे हड्डियों के ऊपर जो मौजूद गोश्त है, इसके अंदर रेशे मौजूद हैं, तार मौजूद है। तो इन तारों को, रेशों को बनाने के लिए ये दो प्रोटीन जरूरी है, एक्टिन और मायोसिन।
तो ये दो प्रोटीन जब बनते हैं तो गोश्त बनता है जो जसामत को बनाता है, जिस्म को बनाता है। तो इनको बनाने के लिए भी कौन काम कर रहे हैं? यही अमीनो एसिड का एक मजमुआ काम कर रहा है। फिर इसी तरह से इन्हीं अमीनो एसिड का एक हिस्सा जुड़कर एक न्यूरॉन को बनाएगा। न्यूरॉन जो है हमारे आसाबी निजाम का अहम रेशा है। न्यूरॉन्स का मजमुआ जो है हमारे जिस्म के अंदर दिमाग की शक्ल में मौजूद है, स्पाइनल कार्ड की शक्ल में मौजूद है, एहसासियत की शक्ल में मौजूद है। कोई भी चीज हमारे जिस्म से टकराए, एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है या गर्मी का एहसास, ठंडी का एहसास, जो भी होता है ये इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से होता है। और इन न्यूरॉन्स का मजमुआ जिसके अंदर लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स मौजूद है, ये जुड़कर बनाएंगे हमारे दिमाग को, आसाबी रेशों को बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए भी इन्हीं अमीनो एसिड का मजमुआ जरूरी है। फिर इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की रुतूबतों की जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं हार्मोन्स। गदूद सुने होंगे शायद आप लोग। गदूद, हमारे जिस्मों के अंदर तरह तरह के गदूद है। एक छोटी सी मिसाल देता चलो, जैसे हम कोई गिजा के बारे में सोचें तो मुंह के अंदर लाभ बनता है। गिजा को खाने का सोचें, देखें गिजा को, लजीज मजेदार गिजा को देखें तो मुंह से लाभ निकलता, मुंह के अंदर लाभ निकलता है। तो लाभ क्या बन रहा है? ये एक सलाइवा है। सलाइवा यानी उसके अंदर एक मौजूद एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, एक तरह का हार्मोन है, कीमियाई मादा है जो गिजा को तहलील करने के लिए बनता है। तो इस लाभ के अंदर मौजूद एक एंजाइम जिसे बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवरी अमाइलेज जो है हमारे लाभ के अंदर मौजूद कीमियाई मादा है। तो ये कीमियाई मादा सलाइवरी अमाइलेज भी किससे बनता है? इन्हीं अमीनो एसिड के मजमूए से बनता है, जो जाकर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद तरह तरह के ग़िज़ाओं को तहलील करने के लिए काम करता है। फिर इसी तरह से और एक गदूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड करके, हमारे कान के पीछे वाले हड्डी के अंदर मौजूद है, जो यहां पर बैठकर तरह तरह की रुतूबतों को बनाता है, जो हमारे पूरे निजाम को चलाता है। चाहे वो तौलेदी निजाम हो, चाहे वो गुर्दे काम करने वाला निजाम हो, चाहे वो हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड, थायराइड तो सुनेंगे शायद सब लोग, थायराइड ग्लैंड का कमोबेशी होने से लोग पतले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, इस तरह के मामलात होंगे। तो ये थायराइड को काम करने के लिए भी यही गदूद काम करेगा यहां से बैठ। तो इसको काम में लाने के लिए जो तरह तरह के कीमियाई मादे तैयार होते हैं, इन कीमियाई मादों को यानी हार्मोन्स को बनाने के लिए फिर से यही अमीनो एसिड काम करेंगे जो हमारे खुलियों के अंदर मौजूद है। तो ये जुड़ने वाला अमल जिसके अंदर तरह तरह के अमीनो एसिड जुड़कर एक अलग शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो ग्लोबिन की शक्ल में हो या एक्टिन की शक्ल में हो या मायोसिन की शक्ल में हो या न्यूरॉन की शक्ल में हो या सलाइवरी अमाइलेज की शक्ल में हो या कोई भी शक्ल में बन रहे हो, तो ये सारा अमल किससे हो रहा है? अनाबॉलिज्म से हो रहा है। अनाबॉलिज्म यानी तामीरी अमल। छोटे जर्रे थे, ये जुड़कर एक बड़ी शक्ल में तब्दील हुए, तो ये जाकर एक जिस्म को बना रहे हैं, ऑर्गन को बना रहे हैं, एक हिस्से को बना रहे हैं जिस्म के, एक अज़ू को बना रहे हैं। तो ये अज़ू, तरह तरह के अज़ू जुड़कर एक क्या है? पूरा एक जानदार को बना रहे हैं, एक जिस्म को बना रहे हैं। तो इस अमल का होना, अनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का होना जरूरी है। तो दोनों के मजमूए को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इससे जुड़े कुछ सवालात हो, कुछ सही समझ में ना आई हो तो इंशाल्लाह 5 मिनट के वक्फे में बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई हो। सर, ये जो मेटाबॉलिज्म की साइकिल आपने थियरी बताई है, इसमें ये जो दो आपने अनासिर बताया, अनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, सर मेरी समझ में ये आया है कि पहला मरहला कैटाबॉलिज्म का होना चाहिए जी, क्योंकि वो तोड़ करके टुकड़ों में जो है उसको काटेगा, फिर उसके बाद अनाबॉलिज्म के जरिए से एक जिस्म तामीर करेगा। सही बात। ये तमाम चीजों में, हर जानदार गैर जानदार दोनों में पाई जाती है सर, ऐसा? हर जानदार। अब देखिए पौधे जो है मिट्टी से बहुत सारे मादनियात को अपने अंदर खींचते हैं जी सर, जिसके अंदर कार्बन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, फास्फोरस भी जा रहा है। तो ये सारे जुड़ेंगे पौधों के अंदर। जुड़ने के बाद उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा। यहां पे पहले अनाबॉलिज्म हो रहा है,
पौधों के अंदर पहले एनाबॉलिज्म तामीरी अमल हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का मजमुआ बनाएगा ये ग्लूकोज को। ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखेंगे तो उसके अंदर 6 अनासिर कार्बन के हैं, 12 अनासिर हाइड्रोजन के हैं, 6 अनासिर ऑक्सीजन के हैं। जी तो इनका जुड़ना ये ग्लूकोज को बनाता है। हजारों ग्लूकोज के जुड़ने से एक स्टार्च बनता है जो पौधों के अंदर गजालियत करता है। जी सर। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होना जरूरी है। तो कभी अनाबॉलिज्म पहले पाया जाता है, कभी कैटाबॉलिज्म पहले, ये कैसे पहचान पाए हैं सर हम के पहले तकरीबी अमल हो रहा है कि तामीरी अमल हो रहा है? जिसकी छोटी सी मिसाल आपको, ग़िज़ा खाना खाए हैं, अभी नाश्ता किए हैं, जी सर हैं, तो ये पहले 1 घंटे में आपके जिस्म के अंदर कैटाबॉलिज्म चालू हो गया। जी फिर इसके बाद आप 1 घंटे के बाद देखेंगे आपकी तवानाई का लेवल जो है ज्यादा होगा जिस्म के अंदर। जी सर इमीडिएट तो नहीं होगा, जैसे ही खाएंगे तभी नहीं आएगी तवानाई। तो जो पहला एक आधा घंटा या 1 घंटा है जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म चल रहा है, फिर इसके बाद जो जिस्म के जरूरियात के हिसाब से तरह तरह की चीजें तो तैयार हो रही हैं, उस हिसाब से जिस्म काम करना शुरू हो गया। जी तो वो एनाबॉलिज्म वाला मामला चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर इससे ये समझ में आ रहा है कि जो चावल जैसे हमने खाया तो उससे सिर्फ ग्लूकोज बना जी, और ये जो बाकी सारी चीजें हैं जितनी ये एक सिर्फ मिसाल ले आऊं आपके सामने चावल की। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ कि वो जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो उससे सिर्फ ग्लूकोज बन रहा है और बाकी जो जितनी चीजें बन रही हैं ये सब की सब प्रोटीन से बन रही हैं। जी, देखिए हमारे ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, जी तरह तरह की चीजें जा रही हैं। मैं सिर्फ आपके सामने एक मिसाल दिया हूं चावल की। ये सबका मामला यही है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो विटामिन हो। जब जिस्म के अंदर जाते हैं तो वहां पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होते हैं, होने के हिसाब से उस लिहाज से जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब के मादनियात को तैयार किया जाता है। तो सर ये अमीनो एसिड जो आपने बताया, जी, तो ये कार्बोहाइड्रेट से भी बनते हैं? प्रोटीन से बनता है, अमीनो एसिड प्रोटीन से बनता है। यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ जी, कि ये कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ ग्लूकोज बन रहा है ना? ग्लूकोज बनता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर होती है। जी शक्कर। और बाकी जितनी चीजें हैं, रेशा है जैसे आपने बताया, ये सब ग्लोबिन है, न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें जो है प्रोटीन से बन रही हैं। प्रोटीन जो है सबसे बड़ा मजमुआ है जिस्म को बनाने के लिए। जी प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डर, यानी जसामत बनाने वाला मादा। जी, हर जसामत को बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो भी खा रहे हैं उल्टा खा रहे हैं, ज्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट ही दिन भर खाते रहते हैं। अब हमारा निज़ाम जो है, इस तरह का ग़िज़ाई निज़ाम जो है, उसमें ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जी अब हमारे जिस्म का वजन जितना है, समझो ये किसी इंसान का वजन 80 किलो है, 80 केजी वजन है एक इंसान का, तो उस इंसान को एक दिन में 80 ग्राम प्रोटीन खाना ज़रूरी है। ओहो। अब हम उतना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हम इसका जायजा ले सकते हैं ग़िज़ा के अंदर। जी अब शुक्रिया। कार्बोहाइड्रेट जो है तवानाई देने वाला मादा है। जी, जितना भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे चावल हो या रोटी हो, ये तवानाई देने वाला है, अहम मामला है। जी और कुछ अभी 1 मिनट वक्त बचा है सवाल के लिए, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सवाल सिर्फ इसी में आज पूरा क्लास हो जाएगा। सर तभी सर लग रहा है हम लोग एकदम धसे हैं। बताइए। प्रोटीन में बता रहे थे, तो प्रोटीन क्या है उसके बारे में अगर आप बता दे, थोड़ा और वजाहत कर दे तो ज्यादा अच्छा। प्रोटीन जो है एक ऐसा मादा है जो ग़िज़ा की शक्ल में जानदार इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटीन चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो, हर जानदार को बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डर, अभी बात किया मैं, अभी बॉडी बिल्डर है, जानदार जसामत को बनाने वाला मादा जो है वो प्रोटीन है।
अब इंसान के जिस्म की अगर जायजा लें तो जिस्म के अंदर प्रोटीन ना हो तो हमारे जिस्म के अंदर कोई गोश्त वगैरह नहीं होगा, हड्डियां नहीं बनेंगी। इसके अंदर कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रोटीन जो है जसामत को बनाने वाला मादा है, बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है जी, शुक्रिया। आगे बढ़े। जी 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 ठीक है। देखिए, सबसे पहला मरहला आ गया मेटाबॉलिज्म का। फिर मेटाबॉलिज्म के बाद जब ये मेटाबॉलिज्म का अमल चलता है जिस्म के अंदर, मैं यहाँ पर एक शेयर करूंगा आपके सामने स्क्रीन। अब जो बात रखी थी आपके सामने, इसी बात को और थोड़ा वजाहत से होने आपके सामने एक स्क्रीन की शक्ल में आपके सामने रखूंगा। देखिए, ये मेटाबॉलिज्म जो अभी मैं आपके सामने रखा बात, यही बात इस रिएक्शन की शक्ल में बताई गई है। एनाबॉलिज्म जिसके अंदर जोड़ होता है, तामीरी अमल। देखिए, ये छोटे छोटे जर्रे हैं यहाँ पर, तो ये छोटे जर्रे आगे चलकर जुड़ रहे हैं, एक बना रहे हैं एक बड़े शय, लार्जर मॉलिक्यूल। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे हिस्सों में बन रहा है। तो यही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। फिर दूसरा, इससे हटकर दूसरा जो सबसे अहम अमल है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब किसी जानदार के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है तो मेटाबॉलिज्म के चलने की वजह से जानदारों के अंदर नमो और इर्तिखा होती है। कहीं पर जमूद नहीं है इंसानी जिस्म के अंदर, या कोई जानदार, चाहे पौधा हो या इंसान हो, एक मरहला वहीं पर रुका नहीं है। जानदारों की शक्ल बदलती रहती है। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा एक बीज से निकल रहा है, वो निकलकर आगे बढ़ते 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 एक बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा। तो ये नन्हे से पौधे से लेकर तनावर दरख्त वाला बनने वाला मामला जो है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। एक बच्चे की पैदाइश होती है तो एक नवमौलूद बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जो इतना छोटा होता है कि आप ये बड़े जानदार, बड़े इंसान के अगर उससे मुआवजा करें तो ये बहुत छोटा नजर आएगा बनिस्बत एक बड़े इंसान के। तो ये बच्चा अलग अलग मरहलों से गुजरते हुए ये आखिरी मौत तक पहुंचता है। तो यही मामला जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ किस तरह हो रहा है, अभी क्या मामला है जो जसामत को बढ़ा रहा है। देखिए, जब नवमौलूद बच्चा या एक छोटा सा पौधा जिसकी शक्ल बिल्कुल छोटी है, नमी है, इसके अंदर जसामत बढ़ रही है। अब जसामत बढ़ने के लिए क्या मामला हो रहा है जिस्म के अंदर? जिस्म के अंदर मौजूद खुलियों की मिकदार बढ़ रही है। जब खुलियों की मिकदार बढ़ रही है तो जसामत बढ़ रही है। तो जसामत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो यही कहलाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नमो और इर्तिखा। तो इस नमो और इर्तिखा को चलाने के लिए, ग्रोथ को चलाने के लिए जब मेटाबॉलिज्म होता है खुलियों के अंदर, तो खुलिये एक ऐसे मरहले से गुजरते हैं जो आगे चलकर दो नए खुलियों को बनाएंगे। ये खुलिया दो खुलियों को बनाएगा, फिर वही दो खुलिये फिर दो नए खुलियों को बनाएंगे, 4 बन जाएंगे। 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिसके वजह से उस जसामत में तब्दीली आएगी, अज़ू बढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म जानदार की जसामत बढ़ेगी। तो ये बढ़ने वाला मामला जो होता है वो कहलाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जानदारों के अंदर इसका होना जरूरी है। गैर जानदार बेजान चीज, जैसे कि मैं भी आपके सामने एक कलम पकड़ा हूं, इस कलम की बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि ये गैर जानदार, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो जानदार, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानदार हो, जो जानदार कहलाता है उसके अंदर इस नमो का होना, इर्तिखा का होना जरूरी है, जो बहुत अहम जुज़ है एक जानदार को जानदार कहलाने के लिए। ठीक है, ग्रोथ यानी डेवलप, नमो और इर्तिखा। समझ में आई बात? जी। नमो के लिए, ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म का काम करना जरूरी है। जी सर। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा मामला हो गया, दूसरा
अहम जुज आ गया। तीसरा जुज जो है, देखिए यहाँ पर और एक स्क्रीन बता रहा हूं आपको, एक बीज से जड़ निकली, जड़ से छोटा सा नन्हा सा पौधा, पौधा होते 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 एक तनाव दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इस जसामत के बदलाव को कहेंगे ग्रोथ। फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा अहम अमल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा जुज है जो जानदारों के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से तनासुल का सिलसिला चलता है। जानदारों के नस्ल का बढ़ना इस अमल के ऊपर डिपेंड है। रिप्रोडक्शन यानी तौलीदी अमल, जिसके अंदर एक जानदार एक मरहले को पहुंचने के बाद ऐसे अमल में इन्वॉल्व होता है जो आगे चलकर एक जानदार को वजूद में लाता है। जैसे कि मिसाल ने एक इंसान की, इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त उस इंसान के जिस्म के अंदर जब ऐसे अज़ू मौजूद हैं जो तौलीदी अमल के लिए काम करते हैं। जैसे कि मर्द के जिस्म के अंदर 2 फौते यानी टेस्टिस, औरत के जिस्म के अंदर 2 ओवरीज यानी अंडे बनाने वाला मादा रहम, दोनों मौजूद हैं। दोनों मौजूद होने के बावजूद वो मादे को नहीं बनाते, तौलीदी मादे को नहीं बनाते। कब बनाएंगे? एक मरहले के बाद, जब एक इंसान सने बलोगियत को पहुंचता है यानी प्यूबर्टी या एडोलेसेंस को जब पहुंचता है, तो तब जाकर उन अज़ू के अंदर जो फौते हो या ओवरी हो, उनके अंदर बहुत सारे तब्दीलियात होते हैं। उन तब्दीलियात की वजह से वहां पर मादे तौलीद बनना शुरू होता है, जो स्पर्म की शक्ल में हो या अंडे की शक्ल में। स्पर्म बनेगा मर्द के जिस्म के अंदर, अंडा बनेगा औरत के जिस्म के अंदर। तो जब अंडा और स्पर्म इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों का जमा होता है, तो वो जाकर बनाएगा एक खुलिये को जिसका नाम है ज़ाइगोट। तो इस जुड़ने वाले मामले को बोलेंगे या मरहले को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें 2 मादे तौलीद, मर्द और औरत से बनने वाले मादे तौलीद का जमा होना, जुड़ना। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक नया खुलिया वजूद में आएगा। देखिए यहां पर एक खुलिया, ये खुलिया वजूद में आ रहा है, कौन सा? ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट जो ये खुलिये की शक्ल में है, आगे चलकर अलग अलग मरहलों से गुजरेगा, जिसके अंदर खुलियों की मिकदार बढ़ेगी। ज़ाइगोट ये खुलिया है, ये जाकर 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा। इस तरह बनते 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 इतने सारे खुलियों का मजमा बनाएगा जो तरह तरह के ऑर्गन्स को बनाएगा, अज़ुओं को बनाएगा, जो एक मुकम्मल जानदार को बनाने वाला काम होगा। तो देखिए इंसान की अगर मिसाल लें, इंसान के जिस्म के अंदर इतने खुलियों का मजमुआ है जिसकी गिनती करना नामुमकिन के बराबर है। इतने सारे खुलिये हैं। एक जगह पर एक लिटरेचर में आ रहा था, अगर इंसान के खुलियों की मिकदार को अगर काउंट करते जाएं और इस खुलियों को एक लाइन में या कतार में जमाते जाएं, तो इस पूरे जमीन, पूरे जमीन कितनी बड़ी है? नहीं जमीन, ये सारी जमीन का एक चक्कर लगाकर फिर आप जहां से शुरू किए थे वहां पर पहुंचेंगे, तब भी जाकर खुलियों का मजमुआ खत्म नहीं होगा। फिर वहां से और एक दौड़ लगाएंगे, फिर जाकर लगभग आधा कुर्रे जमीन का हिस्सा तय करेंगे, यानी 1.5 मरतबा आप चक्कर लगाएंगे पूरे इस कुर्रे जमीन के, तो तब जाकर खुलियों का सिलसिला खत्म होगा। तो अंदाजा लगाएंगे कितने सारे खुलिये होंगे। पहली बात, ये खुलिये आपको नजर नहीं आ रहे, इतने छोटे हैं, और इन खुलियों के अंदर बाकायदा एक निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसके अंदर तरह तरह के अज़ू मौजूद हैं। इन खुलियों के अंदर अज़लात मौजूद हैं, जिसे सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इंशाल्लाह बात आएगी जब हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, तो उन अज़लात के बारे में भी बात करेंगे, खुलकर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी आपके सामने। तो जब एक खुलिया इतना छोटा है जिसके अंदर बहुत सारे अज़लात मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, ये खुलिया बन रहा है किससे? ज़ाइगोट से। तो यही ज़ाइगोट जाकर बना रहा है हजारों लाखों करोड़ों खुलियों को, जो एक जसामत को बना रहा है। तो जो एक ज़ाइगोट बना है, ज़ाइगोट जाकर एक मुकम्मल जानदार को बना रहा है माँ के रहम के अंदर।
तो जब ये जानदार का वजूद हो रहा है माँ के रहम के अंदर, तो यही जानदार फिर से नशोनुमा पाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर वही बात आ गई। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? फिर वही मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। तो जब ये मामला बढ़ता चला जाएगा तो वो बच्चा लड़कपन में पहुंचेगा, फिर एडोलेसेंस पीरियड यानी सने बलोगियत को पहुंचेगा, फिर ये मामला चलता रहेगा। तो ये रिप्रोडक्शन वाला मामला जिसके अंदर नस्ल आवारी का मामला होता है, जिसके अंदर नस्ल ब नस्ल जानदारों की बढ़ोतरी होती रहती है, तो इसके लिए ये अमल का होना, जानदारों के अंदर रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन जो है दो तरह का है। एक आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर इसके साथ साथ और एक भी नजर आएगी आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मामला है जिसके अंदर दो जानदार पाए जाते हैं जो तौलेदी अमल को अंजाम देते हैं। ये कहलाएगा नर और एक कहलाएगा मादा, मेल और फीमेल। नर और मादा दोनों एक मरहले को पहुंचने के बाद उनके जिस्मों में मादे तौलेद का बनना जरूरी होता है। अब मादे तौलेद क्या है? गैमीट्स, इसको बोलेंगे अंग्रेजी जबान में बोलेंगे तो गैमीट्स, चाहे वो स्पर्म की शक्ल में हो चाहे वो अंडे की शक्ल में हो। तो इस अंडे और स्पर्म का मिलाप होना, जुड़ना, क्या नाम है सर जी? गैमीज क्या बोले? गैमीट, स्पेलिंग GAMETE, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। अभी देखिए 3 मरहले आ गए हैं अभी, मेटाबॉलिज्म, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जो तीसरा जो है वह है रिप्रोडक्शन यानी तौलेदी अमल। तो इस तौलेदी अमल के लिए जानदारों का होना जरूरी है, और जानदारों के अंदर मेटाबॉलिज्म के चलने की वजह से ही तौलेदी अमल होता है। तो तौलेदी अमल जो है दो तरह का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। पहले बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक ऐसा मामला है जिसके अंदर दो जानदारों की जरूरत पड़ती है। ये कहलाएगा मेल और एक कहलाएगा फीमेल, नर और मादा। तो नर जो होता है ये एक मादे तौलेद को तैयार करता है, एक मादा भी जो है ये भी एक मादे तौलेद को तैयार करती है। कौन से मादे तौलेद को? जिसे बोलेंगे गैमीट्स। मादे तौलेद को कहेंगे गैमीट्स, यानी नर के जिस्म से मादे तौलेद निकलेगा जिसे बोलेंगे स्पर्म। फिर मादे से निकलेगा, मां से निकलेगा या मादे से निकलने वाला मादे तौलेद कहलाएगा एग यानी ओवा। ये गैमीट्स हैं। ये भी जो है एक तरह के खुलिये हैं। गैमीट्स भी जो है एक तरह के खुलिये हैं जो आगे चलकर तौलेदी अमल को अंजाम देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन गैमीट्स का बनना जरूरी है। तो गैमीट्स जो स्पर्म और अंडे की शक्ल में मौजूद हैं, जब इन दोनों का जोड़ होता है, किसका? स्पर्म और एग, इन दोनों के जोड़ से एक नया खुलिया वजूद में आएगा जिसका नाम है जाइगोट। तो ये खुलिया आगे चलकर एक मुकम्मल जानदार को बनाएगा जिसके अंदर खुलियों की मिकदार इतनी होगी जिसकी गिनती करना नामुमकिन के बराबर। तो इस खुलिये के अंदर, जाइगोट के अंदर, इन दोनों का मजमुआ है। किसका? स्पर्म का और अंडे का, दोनों का मजमुआ है। अब इंसान की मिसाल नहीं, अब इंसान के हर एक खुलिये के अंदर जो जिस्म के अंदर पाए जा रहे हैं, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। हमारे हर एक खुलिये के अंदर एक मरकजा मौजूद है, उस मरकजे के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद है, चाहे वो नर हो या मादा हो, चाहे वो नर हो या मादा हो, जिसके हर एक खुलिये के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। ये 46 क्रोमोसोम वाला खुलिया हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में मौजूद है।
जब तौलीदी अमल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जो खुलिये तौलीदी अमल के लिए काम करते हैं, जैसे कि फौतों के अंदर, टेस्टिस के अंदर मौजूद खुलिये, हर एक खुलिये के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद है। वोवरी जो मादे राम है जिसके अंदर अंडा मौजूद है, अंडा जो बनता है उसके अंदर भी जो खुलिये मौजूद है, मादे राम के अंदर या वोवरी के अंदर, उसमें भी 46 क्रोमोसोम मौजूद है। जब गैमीट बनाने वाला मामला होता है अंडा या स्पर्म का, तो ये खुलिये जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये मिकदार घटकर 23 पर आ जाती है। और किस तरह घटती है इंशाल्लाह आपके सामने तफसीलात बाद में आएंगे। और एक चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि तौलीदी अमल, खुलियों के अंदर पाए जाने वाला तौलीदी अमल, वहां पर खुलकर बात आएगी एक नंबर किस तरह घटकर आधा होता है। तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, फिर अंडा एग, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जब ये 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म और 23 क्रोमोसोम वाला अंडा दोनों का जोड़ होगा, तो इससे कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे? फिर से 46, जो यहां पर भी 46 थे, यहां पर भी 46। तो इन 46 नंबर को बनाए रखने के लिए, बाकायदा उसी नंबर को कायम रखने के लिए इन क्रोमोसोम्स का घटना जरूरी होता है। घटकर ये आगे जुड़ेंगे, जुड़कर जाइगोट को बनाएंगे, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, जिसके अंदर नर और मादा का मिलाप होना, मिलाप के साथ साथ अंडे और स्पर्म का मिलाप होना, जिससे एक नया खुलिया वजूद में आना जिसका नाम जाइगोट, फिर जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार का बनना। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से और एक रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो जानदार नहीं होते, कोई एक जानदार सिर्फ तौलीदी अमल को अंजाम दे सकता है। अब ये कहां पे होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है चंद पौधों के अंदर पाया जाता है। चंद ऐसे पौधे हैं जो तनावर नहीं होते, जिस तरह के बड़े बड़े दरख्त हो इस तरह नहीं होते, छोटे पौधे होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स बोलते हैं उसको। तो इंशाल्लाह जब हम लोग दारुल उमूर में फिजिकल क्लासेस के लिए जुड़ जाएंगे तो सारी चीजें भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है? सिर्फ एक जानदार, यानी एक जानदार जो है एक नए जानदार को वजूद में लाने के लिए काम करता है। यूनिपेरेंटल, यूनि माने एक जानदार काफी होता है दूसरे जानदार को वजूद में लाने के। इसके अंदर होता क्या है? जो खुलिया मौजूद है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये एक नए खुलिये को तैयार करेगा जिसके अंदर मिकदार 46 ही होगी, और यही जाकर एक मुकम्मल जानदार को बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है मामला? जो एक नया खुलिया बन रहा है जिसके अंदर एक ही तरह के क्रोमोसोम मौजूद हैं, इससे बनने वाला जानदार और ये जानदार दोनों मुमासिल हैं, सेम है, एक ही तरह होते हैं, क्लोन्स होते हैं या आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। देखने में जसामत, शक्ल वगैरह सब जो है इसकी और इसकी दोनों की एक सां पाई जाती है, क्योंकि एकदम से वो एक ही जानदार से बना है जिसके अंदर किसी तरह का मुदाखिलत नहीं है, यहां पर किसी तरह का जोड़ नहीं हुआ है। ये जितने क्रोमोसोम है इतने ही कम सारे क्रोमोसोम यहां पर भी आ गए डायरेक्टली एक ही जानदार से। फिर इसी से जो बनने वाला जानदार है, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों एक ही, इसको बोलेंगे क्लोन्स, यानी क्लोनल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब यहां पे मामला ऐसे नहीं है। अब देखिए हम अपने आप की मिसाल लें तो हम किसका नतीजा है? इन दोनों का जोड़ का नतीजा है। स्पर्म और अंडे का जोड़, स्पर्म कहां से आया? बाप से। अंडा कहां से आया? मां से। दोनों का जोड़ हो गया, जाइगोट बन गया मां के रहम के अंदर। फिर ये जाइगोट बन गया एक मुकम्मल जानदार जो हमारी शक्ल में मौजूद है। अब हम अपने आप का मुआवजा करें हमारे माँ बाप से, तो क्या हमारे शक्ल सारी खूबियां माँ बाप की एक सा है, एक ही तरह के? नहीं, हम उनके आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हाँ, चंद खूबियां हैं जो हमें नजर आती है माँ की, बाप की। कहां से मिल रहे हैं? इन्हीं क्रोमोसोम से मिल रही है। तो ये जो क्रोमोसोम्स 23 माँ से और बाप से जो आ रहे हैं, इनका जोड़ होने की वजह से बहुत सारे नए खूबियां जुड़कर आएंगी जो हमारे जिस्मों में नजर आएंगे। इसको बोलेंगे वेरिएशंस। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव होते हैं क्योंकि यहां पर दो जानदार जुड़ रहे हैं। तो ये मामला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो हर जानदार, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, कोई चरिंद हो, परिंद हो, हर जानदारों के अंदर इसका मामला होना जरूरी है। अब पौधों के अंदर भी नर और मादा हिस्से पाए जाते हैं। अब पौधों के अंदर पाए जाने वाला नर हिस्सा जो है जरदानों की शक्ल में बनेगा, जिसे पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। इंशाल्लाह जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे दारुल उमूर में फिजिकली, तो इंशाल्लाह सारे जरदानों को भी देखेंगे। फिर मादा हिस्सा जो होता है वो है वोव्यूल, बेजा। तो जरदाने और बेजे दोनों का जोड़ होने की वजह से एक बीज बनकर निकलता है, तो वही बीज आगे चलकर एक मुकम्मल पौधे को बनाता है। तो ये मामला, तौलीदी अमल वाला मामला, न सिर्फ जानवरों में है, पौधों के अंदर भी पाया जाता है, जरासीमों के अंदर भी पाया जाता है। हर जानदार के अंदर इस मामले का होना जरूरी है। अगर ये मामला ना हो, तौलीदी अमल का मामला ना हो, तो वह जानदार नहीं कहलाता। तो जानदारों के अंदर तसलसल का मामला, नस्ल आवारी का मामला जो होता है, उसको कहेंगे तौलीदी अमल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई हो। इससे कुछ सारे सवाल हो तो एक 5 मिनट के वक्त में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। जरदाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आवाज सुनाई दे रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद समझ में आई हो बात। देखिए ये 2 चार्ट हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जिसके अंदर मादा और नर और मादा दोनों का मिलाप अंडे और स्पर्म की शक्ल में, फिर जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार बना। फिर एसेक्सुअल देखिए यहां पर, और एक वाला देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर होता क्या है, एक जानदार है, एक खुलिया है, ये आगे चलकर 2 में बटेगा, या उससे एक नया हिस्सा बनेगा जो आगे चलकर एक मुकम्मल जानदार को बनाएगा, जो बिल्कुल उसी की शक्ल वाला होगा। इसको बोलेंगे ये सेक्सुअल, जिसके अंदर सिर्फ एक जानदार तौलीदी अमल के लिए काफी होता है। सेक्सुअल के लिए 2 जानदारों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक नर और एक मादा। कुछ सवाल हो इससे जुड़े हुए? ये जरदाने को